آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے آپ کے حاضر خدمت ہے پروگرام 14,000 اسپانسر میں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج شب عید قربان ہے، لہٰذا اس حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے جن ایام کو ایام عید قرار دیا، یقیناً اس کے فضائل، برکات اور خیرات ہے کہ جس سے مومنین مستفید ہوتے ہیں حقیقتاً۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ایک انسان جو رسول اللہ کا امتی ہے اور اللہ کے فرامین کے مطابق جن ایام کو ایام عید قرار دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے وہ اس میں اپنے لیے خوشی اور خوشبختی کا دن قرار نہ دے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جو ایام خاص کیے گئے ہیں اور اللہ نے ان ایام کو ایام عید قرار دیا، یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس حوالے سے ہم سب جو ہے اس کو اپنے لیے خوشبختی سمجھیں۔ اور اس حوالے سے بہت سارے روایات جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو عید قربان ہے، حقیقتاً عید الاضحیٰ کے دن 5 اعمال سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے قربانی، اور دوسری چیز ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے یا کسی ایسے رشتہ دار کو تحفہ دینے یا سلام کرنے جانا جس نے قطع رحم کیا ہو، یعنی وہ آپ کا رشتہ دار یا جو بھی ہے آپ کے صلہ ارحام میں سے، اس نے آپ کے ساتھ ترک تعلق کیا ہوا ہے، آپ نے عید کے دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور یا وہ شخص جو اپنی قربانی میں سے بہترین چیزیں دوسروں کو کھلائیں، قربانی اس نے کی ہوئی ہے اور اس کے اعتبار سے وہ جو ہے دوسروں کو کھلائے اس قربانی میں سے، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اور باقی حصوں کو اپنے یتیم، مساکین اور غلام پڑوسیوں کو دے اور قیدیوں کی دلجوئی کرے۔ اس قسم کے اعمال کو عظیم اعمال قرار دیے گئے ہیں۔ غالباً ہمارا رابطہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ جی انشاءاللہ رابطہ انشاءاللہ ہمارا قائم ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ سلسلہ جو عید کا ہے نہایت ہی مہم موقع ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بھی اسلامی ممالک ہے سارے کے سارے عید کو جو ہے وہ مناتے ہیں، چاہے وہ بر صغیر پاک و ہند ہو یا اس کے علاوہ جو ہے عرب کنٹریاں ہیں، یا جہاں کہیں پر بھی ہے خصوصی طور پہ قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ اولاً تو یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک جاندار کی جو ہے وہ جان اس کو ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں، تو صرف جاندار یہ تو نہیں ہے بلکہ جو نباتات ہے وہ بھی تو جاندار ہے، جیسے انسان جو ہے سبزیاں ہیں یہ بھی جاندار ہے، اور یہ سائنس سے ثابت ہے۔ تو پھر اگر اس طریقے سے ہے تو آپ کسی جاندار کی بھی پھر جان نہ لیجئے،
सब्ज़ीजात भी न खाइए, बल्कि सब्ज़ियों के ऊपर हाथ भी न रखें, पैर भी न रखें, और इसी तरीके से जो है फ्रूट वगैरह भी न खाएं। चूँकि अगर आपको इस कदर जो है आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ जानदार होती है उसको जो है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर जानदार तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिहाजा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आज हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे आली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सिब्तैन नूरी साहब क़िबला लखनऊ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे, और राब्ता भी हमारा गालिबन कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा मिजाज है आपका? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला आपकी दुआएं हैं, और सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप और बंदे हकीर तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपने कीमती औकात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। नहीं, हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस लायक समझा कि हमें बात करने का मौका दिया। सआदत का मकाम है हमारे लिए। क़िबला चूँकि आज शब ईद कुर्बान है, तो इस हवाले से आपकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि शब ईद है और फिर कल जो है वो ईद का मौका है, तो आप वहाँ पे माशाल्लाह लखनऊ में मौजूद है। पहला सवाल मैं इसी उन्वान से करूँगा कि इंडिया और लखनऊ में शियों के लिए कौन से चैलेंजेस का सामना है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, इस हवाले से अगर एक वजाहत फरमा दें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ कल ईद नहीं है, परसों ईद है यहाँ। ठीक है, सही। तो सही। वहाँ अरब ममालिक में वहाँ कल ईद है, यहाँ परसों है। जी। तो कल तो दुआए अरफा का दिन है और शहादत का दिन भी है। और जो आपने फरमाया है कि यहाँ पर शिया किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो बहुत चैलेंजेस हैं जी, जिसका शिया कम्युनिटी यहाँ पर सामना कर रही है। बिल्कुल। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जी, एजुकेशन की कमी है, जी, माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी मॉडर्न एजुकेशन दिलवा सकें। सही। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, तो कम्युनिटी जूझ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों की जो फील्ड है वो एजुकेशन की फील्ड है। जी, हम लोग एजुकेशन दिलाने के लिए कौम को काफ़ी तामीरी काम कर रहे हैं, दुनिया जानती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के हालात हैं वो भी नासाजगार हैं, सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी। इसलिए कम्युनिटी के सामने, शिया कम्युनिटी के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। जी, बस दुआ आप सब भी करिए, हम सब भी करें कि परवरदिगार आलम हमारे शियों को, हमारी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको साजगार करे, इलाही और कौम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के मैदानों में बहुत आगे बढ़े। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, यकीनन पूरी दुनिया में जो है वो मसाइल है, और इस तरीके से जो है वो यकीनन हमें अपने शियों के मसाइल देखने चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम जारी फरमाया। एक सवाल मैं क़िबला आपसे ये करना चाहूँगा कि जो ईद कुर्बान है, यकीनन इंडिया में जो है वो कल से परसों जो है वो ईद कुर्बान है, तो इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या मकसद है, इस हवाले से भी अगर कुछ वजाहत फरमा दें। देखिए, अब आप तो कभी नाजरीन मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुसलमानों में दो ईदें हैं जी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, यानी बकरीद और ईद उल फित्र। लेकिन हम शियों में तीन ईदें हैं, एक ईद फित्र है और एक ईद उल अज़हा है, और एक आने वाली है ईद गदीर। सुभान अल्लाह। तो ईद उल अज़हा जो है, उसकी जो अहमियत है वो कुरान मजीद से साबित है, और मुस्तनद और ऑथेंटिक हदीस से साबित है कि जब एक नबी खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी भी मानते हैं, जिनको ईसाई भी मानते हैं, और जिनका मुसलमान भी बहुत एक नबी होने की वजह से एहतराम करते हैं, बेशक, जब उन्होंने कई दिन तक ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल से, जो नबी थे, आपने फरमाया कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ। तो जनाब इस्माइल ने फरमाया कि
بابا آپ اس حکم خدا پر عمل کریے، جی ساتجدون انشاءاللہ من الصابرین، اللہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان تو اللہ، یہاں پر میں ایک علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ، کہ وہ اس کے بعد فرماتے تھے کہ باپ ہو تو ایسا اور بیٹا ہو تو ایسا، واہ سبحان یعنی اللہ، باپ بے ہو تو شک حضرت ابراہیم جیسا اور بیٹا ہو کہ حضرت اسماعیل جیسا۔ بے شک بے تو شک اس حکم پر عمل کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ بے شک، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک باپ کے ذریعے اکلوتے کے گلے پہ چھری چڑھوا دے، اور وہ بھی بالکل اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا بیٹا۔ جی تو ان کے فدیے کے طور پر ایک دمبا آ گیا، اور اس قربانی کو موقع کر دیا گیا واقعات کربلا کی طرف۔ اللہ تو تمام مسلمان اس قربانی کی یاد میں دمبے ذبح کرتے ہیں جی اور قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، جی لیکن یہ ایک سمبولک چیز ہے۔ جی اصل چیز یہ ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا مقصد ہے، کہ اللہ کی راہ میں ہم کو بڑی سے بڑی قربانی دینے میں بھی تامل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جب ایک اللہ کے نبی اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا، اللہ تو ہم کو اپنے ایگو کو قربان کرنا چاہیے، اپنے بالکل غصے کو قربان کرنا چاہیے، بے شک اپنی ڈیزائرز کو جو بیجا ڈیزائرز ہیں، جی جو بیجا خواہشات ہیں، ان کو قربان کرنا چاہیے، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے۔ یہ اس کا میسج ہے۔ جی اور چونکہ حج کا روز بھی ہوتا ہے کل اور یا پرسوں، تو اس قربانی کو حج سے بھی ملا دیا گیا کہ جہاں توحید کا پیغام عام ہے، اور جہاں مساوات اور ایکویلٹی کا جو پیغام ہے وہ تمام دنیا کو دیا گیا، تو یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عید ہے، جی اور ہر فرقہ اور ہر مسلک اس عید کو مناتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرما دی۔ میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ خود بر صغیر ہند و پاک میں کچھ ایسے علاقے بھی ہے کہ جہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر حال میں قربانی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے انسان جس حالت میں بھی ہو۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ایک وضاحت فرما دیجیے کہ کیا ہر حال میں قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے حاجیوں کے علاوہ؟ اس حوالے سے آپ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ نہیں، جو ہماری فقہ ہے، شیعہ فقہ، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے توسط سے ہم تک پہنچی، جی لہٰذا اس میں بہت ہی یعنی ہم کو فلیکسیبل یہ شریعت نظر آتی ہے، جو فقہ جی جعفری ہے یا فقہ محمدی ہے۔ جی تو اس میں ہماری فقہ میں شیعہ فقہ کی بات کر رہا ہوں، جی یہاں پر حاجی کے لیے تو واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، صحیح یعنی اگر 5 لوگ حج کرنے جائیں گے تو ہر فرد جو ہے وہ قربانی کرے گا حج کے جی میدان میں، لیکن غیر حاجی کے لیے یہ واجب نہیں ہے، بلکہ صحیح جو ہے مستحب ہے۔ اور اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ اب مثال کے طور پر مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جی جی بالکل کہ ایک جانور کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی بہت ہے۔ زیادہ ہے، بالکل تو ہماری فقہ نے اجازت دی ہے کہ ایک جانور اگر ایک انسان ذبح نہیں کر سکتا تو اس میں بہت سے شیئرز بھی کر سکتا ہے، اچھا یعنی کئی افراد مل کر بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ثواب وہی ہوگا کہ جو ایک قربانی کا ہوتا ہے۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ہمارے کیا موجود ہے جی کہ جو اور فقہوں میں نہیں ہے، اسی لیے ہماری فقہ جو ہے وہ بہت ہی ممتاز فقہ ہے، بے شک اور پوری دنیا آپ فقہ جعفری کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جی بے شک نہایت ہی مفید گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی، اور ایک سوال میں اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب قربانی ہو جاتی ہے اور جو گوشت آتا ہے تو قربانی کے گوشت کو کن افراد میں یعنی تقسیم کرنا چاہیے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ مستحق ہے؟ اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ اب شریعت میں تو دیکھیں آیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرو، 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ جی ایک حصہ تمہارے اہل خانہ کے لیے ہو، گھر والوں کے لیے ہو جی اور دوستوں کے لیے ہو، اور دوسرا حصہ تمہارے رشتہ داروں کے لیے ہو۔ جی
क्योंकि इस्लाम में सिले रहमी की बहुत अहमियत है, जी। इसलिए रिश्तेदारों का भी पास और लिहाज रखना चाहिए। और हम सब अपने रिश्तेदारों को जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो भेजते हैं, सही। ताकि इससे मोहब्बत में और आपसी ब्रदरहुड में इजाफा हो। जी। और इसके अलावा एक हिस्सा जो है वो गुरबा और मसाकीन के लिए, सही। सबसे अहम हिस्सा यही गुरबा और मसाकीन के लिए है, जी। क्योंकि इस्लाम ने हर मौके पर गुरबा और मुफलिस और मुखलिस जो कम ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका ख्याल रखा है, और मुस्तहिकीन तक, ज़रूरतमंदों तक, नीडी अफराद तक कुर्बानी का एक पोर्शन पहुंचा देना बहुत ही ज़्यादा सवाब है। जी। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में साफ तौर पर आया है कि कुर्बानी का जानवर अल्लाह तक नहीं पहुंचता, कुर्बानी का खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, कुर्बानी की जो स्किन है जानवर की वो अल्लाह तक नहीं पहुंचती, जी। बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। बेशक। इसलिए हमको बाज़ तौर पे आपने देखा होगा जी। कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियोस डाले जा रहे हैं, और इस मुल्क में कि जहाँ मुसलमान जो हैं बहुत ही कम तादाद में हैं, जी। हमारे अहले हुनूद भाइयों के मुकाबले पे, तो इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए है। बिल्कुल। और इस किस्म की वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो डालने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। अगर किसी को दिखाने के लिए की जाएगी तो ये रियाकारी है, बिल्कुल शो ऑफ है, और फिर इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यकीनन एहतराम जो है वो ज़रूरी है, और किबला नहायत ही शुक्रगुजार है, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में अगर कोई पैगाम मोमिनीन के लिए है, मुख्तसरन बिस्मिल्लाह फरमा दें। मेरा पैगाम आपके तवस्सुस से, आपके वसीले से तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए है कि वो इल्म में सबसे आगे बढ़ें, एजुकेशन में सबसे आगे बढ़ें, क्योंकि इस ज़माने में इज्जत उसी कौम को मिल सकती है कि जो इल्म में, साइंस में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे है। जी। लिहाजा जिस तरीके से वो नमाज की पाबंदी करते हैं, रोज़े की पाबंदी करते हैं और अज़ादारी की पाबंदी करते हैं, उसी तरीके से वो इल्म हासिल करने की भी पाबंदी करें। जी। और फरमाया करते थे कि एक वक्त का खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाओ। जी। हमको मॉडर्न एजुकेशन भी दिलवाना है, साइंस की एजुकेशन भी दिलवाना है, दीनी तालीम भी दिलवाना है, और उसके अलावा हर शोबे में हमको बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारे लिए इज्जत और रिस्पेक्ट का बायस बनो। तो इस जमाने में इज्जत उसी को हासिल होगी जिसके पास इल्म हो, जी। और दीनी इल्म भी हो, दुनियावी इल्म भी हो। लिहाजा मेरा यही पैगाम है कि तमाम शिया इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे बढ़े। इंशाअल्लाह किबला नहायत ही आपके शुक्रगुजार है, और इंशाअल्लाह मोमिनीन के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप यकीनन जो है मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आपसे वक्त ले सकूँ, और इंशाअल्लाह इस फैज़ अज़ीम से मज़ीद अयाम में भी फैज़याब होते रहें। शुक्रगुजार है किबला, आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अल्लाह को जज़ाए खैर दे इलाहिया, और आपके चैनल को और तरक्की अता फरमाए इलाहिया, ताकि उलूम अहले बैत इसी तरीके से आप नश्र करते रहें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह शुक्रिया किबला, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे डॉक्टर सैयद कल्ब सिफ्तैन नूरी साहब किबला, और इस उन्वान से कि यकीनन जो कुर्बानी है उसके कुछ अहदाफ है और कुछ मकासद है। उसमें से सबसे बड़ा हदफ तो ये है कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं वो रज़ाए खुदा के लिए कर रहे हैं, तो एक अच्छा पैगाम है। चूँकि बाज़ ममालिक में, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में, ज़ाहिर है कि जो बड़े जानवर होते हैं ख़ुसूसन उनके यहाँ वो लोग जो है ग़ालिबन वहाँ पर मुश्किलात बनते हैं, तो इस हवाले से भी उन्होंने एक वजाहत फरमा दी। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमने असल में अल्लाह की इबादत करनी है, तो कुर्बानी यानी अल्लाह की रज़ायत हासिल करना। सारे इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं, कुर्ब खुदा के लिए किए जाते हैं, और फिर इसका नाम भी ईद कुर्बान है, यानी एक नामों में से एक नाम जो है वो कुर्बान है। तो तकर्रुब इलाही और खुदा के साथ कुर्ब, ये असल हदफ है इस ईद का, कि हम जो है
ज़्यादा سے زیادہ خدا کے نزدیک ہو سکے۔ ہر عبادت جب ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، قربتاً اللہ ہم کہتے ہیں کہ اصل جو ہدف نماز اور روزہ یا خمس و زکوٰۃ اور حج جو اعمال بھی ہوتے ہیں یا قربانی، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ قرب خداوندی ہے کہ ہم قرب خداوندی کے منزل تک پہنچے۔ اور اس حوالے سے روایات موجود ہے قربانی کے حوالے سے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کرتا ہے، جب قربانی کے جانور کا ایک قطرہ خون جب گر جاتا ہے تو اللہ جو ہے وہ صاحب ذبیحہ کے لیے، جو یہ ذبیحہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے، شاید ہو سکتا ہے جو کم ایمان طبقہ لوگ ہے، وہ یہ کہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے سے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ فرامین ہے، روایات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص بھی میرے رضا کے لیے ذبیحہ کرے، بلکہ یہ جو ذبیحہ ہے، اس ذبیحہ کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، یعنی حیوان ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان قربانی کر رہا ہے تو قربانی میں جو خون گرتا ہے وہ یقیناً اس صاحب ذبیحہ کے لیے اس کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور یہ شخص جو ہے دنیا اور آخرت، اور ظاہر ہے جب انسان کی گناہ بخش دی جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آپ تمام ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ گناہ جب انسان کے گردن پہ آ جاتے ہیں، یہ گناہ صرف روز قیامت کے لیے ضلالت کے سبب نہیں بنتے، بلکہ یہ جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ انسان اللہ کے قرب سے برطرف ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ سے برطرف ہو جاتا ہے۔ یہ شخص جو ہے، اس کی موت جو ہے وہ خدائی موت نہیں ہوتی، اس کی زندگی خدائی زندگی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے، اس کی حالت یعنی ایسے ہو جاتا ہے جیسے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں بہرحال علماء عرفان کہتے ہیں کہ جو گنہگار آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک جانوروں کے بھیڑ سے جو وہاں پر جس کو گلہ کہتے ہوں گے غالباً، اس سے جیسے برطرف ہو جاتا ہے، جیسے وہ جانور پریشان ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ انسان ہوتا ہے، جس کا کوئی صاحب نہیں ہوتا، کوئی اس کا راعی نہیں ہوتا، اس کا کوئی جو صاحب ہے جو اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس قسم کی مثال دی جاتی ہے۔ یا ایک پرندہ جو اپنے جھونٹ سے اپنے اس تمام جو پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سے کہیں برطرف ہو جائے، رہ جائے۔ تو گنہگار آدمی کی مثال یہ ہے، اس قسم کی مثال ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس قسم کے اشخاص کو جو سورہ بقرہ کی تعبیر ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ادھر ادھر جاتا ہے، پریشان وہ شخص۔ تو گنہگار یہ ہے، گنہگار شخص اس قسم کا ہے، اور جب گناہ بخش دی جاتی ہے تو انسان قرب الہی کے منازل تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ شخص خوشبخت ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے عید الاضحیٰ کو قرار دیا تاکہ مساکین گوشت سے سیر ہو سکے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ مساکین کے لیے جو غریب لوگ ہیں وہ گوشت سے سیر ہو جاتے ہیں، کوئی شخص نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ غریبوں کا حصہ اس میں ضرور، جو سہم ہے وہ ضرور غریبوں کا رکھا جائے، چونکہ اصل ہدف یہ ہے کہ مومنین گوشت سے سیراب ہو جائے۔ اور یہ واضح ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ حاکم تھے، اور حاکم یہ ہے کہ حکومت میں بس اوقات لوگ جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، بعض لوگ نہیں کھاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف جو ہے وہ انسانوں کی کیٹیگریز ہوتی ہے، اور مختلف جو ہے وہ انسانوں کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں فرسٹ کلاس لوگ، جن کے پاس پیسہ وافر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، جہاں جانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس لوگ، ایک ہوتے ہیں تھرڈ کلاس لوگ۔ یعنی تھرڈ کلاس سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بس اپنے پیٹ کو جو ہے بھوکے نہیں سوتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ درجے کے ہوتے ہیں اور وہ ان کے تک کھانا بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ کلاس لوگ ہیں یہ زیادہ تر گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، ہفتے میں ایک دن کھا لیں گے،
10 दिनों में एक दिन खाएंगे। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आदिल हाकिम थे और नमूने अमल है तमाम हुकाम इस्लामी के लिए, तो हज़रत जो है अपने घर में गोश्त नहीं लाया करते थे। जब सवाल किया गया या अमीर अल-मोमिनीन वजह क्या है, तो हज़रत ने फरमाया कि बहुत सारे लोग मेरे ममलिकत में होंगे जो गोश्त नहीं खा रहे होंगे, तो ये मुनासिब नहीं है कि हाकिम गोश्त खाता रहे और उसकी रियाया गोश्त के बगैर रहे, माँ सिवाय ईद उल अज़हा के मौका पर। ईद उल अज़हा के मौका पर चूँकि आपकी हुकूमत का दारुल खिलाफा कूफा था और कोई भी ममलिकत इस्लामिया में ऐसा शख्स नहीं होता था जिसको गोश्त न पहुँचे ईद उल अज़हा के मौका पर, तो हज़रत भी ईद उल अज़हा के मौका पर गोश्त लेके आते थे अपने अहले खाना के लिए। तो ये सिलसिला था। और एक इसमें बड़ा अजीब वाक़या है कि आपकी एक हमसर जो बग़ैर ईद ज़ुहा के गोश्त कहीं बना रही थी, तो हज़रत ने जब महसूस किया, ज़ाहिर है गोश्त की खुशबू है, तो हज़रत ने फरमाया कि ये गोश्त कहाँ से आया, तो उस बीबी ने फरमाया कि ये गोश्त जो है मेरे भाई लेके आए हैं, उन्होंने किसी ऊँट को नहर किया हुआ था और उसमें से गोश्त हमारे लिए भी लेके आए हैं, मेरा हिस्सा। तो हज़रत ने उनको फरमाया कि हनीअन लकुम, और जब हनीअन लकुम कहा तो बीबी फरमाती हैं कि मेरे आखिरी जो ज़िंदगी थी उसमें मुझे कभी सर दर्द तक नहीं हुआ, यानी जो हज़रत की दुआ थी। माशाल्लाह। जाते हैं कॉलम की तरफ और पहली कॉलर है आज शब कुर्बान के मौका पर सीमा हैदर जैदी साहिबा कराची से। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है और शब ईद कुर्बान है, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी गालिबन जी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका अबुल फज़ील अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने पाक परवरदिगार अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे फिर इज़्न ज़ियारत नसीब हुआ। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और फिर मैं दुआ कहूँ इमाम हुसैन TV4 वालों तमाम मेंबरान के लिए, जिनकी वजह से हमारी ये कोशिशें हैं इतनी कि हमारी आवाज़ें, हमारी दुआएं हमारे इमाम तक पहुँच रही हैं। अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता करें। और बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जिन मोमिन मोमिनात ने मुझे दुआओं के लिए सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाएं। और आज अरफे का दिन है यहाँ पाकिस्तान में, तो दुआओं का मुस्तजाब का दिन है ये। तो मेरी जितनी भी हाजतें हैं, मेरे चारों बच्चों की हाजतें वो पूरी हो जाएं परवरदिगार आलम, और बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। और मेरे मौला इमाम ज़माने के माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात हैं मौला मुस्तजाब फरमाए। और जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी मोमिनीन के साथ शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकें। शुक्रिया आपका। तो सलामत रहें आप, खुदा हाफिज़। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा जअलल्लाहुल अज़हा लिशबअ मसाकीनुकुम मिनल लहम फ़अतइमूहुम। फरमाया कि अल्लाह ने ईद ज़ुहा को मसाकीन के लिए करार दिया ताकि वो पेट भर के गोश्त खाएं, तो बस ज़रूरी है कि उनके ऊपर गोश्त को इत्आम किया जाए, यानी उनको दिया जाए। ये अमल जो है सबसे बेहतरीन अमल है गोश्त के हवाले से। और फिर सिद्क़ की नीयत के हवाले से फरमाया मन सदक़त नियतहु कानत अव्वल क़तरतिन लहू कफ़ारतन लिकुल्लि ज़न्ब। फरमाया कि अगर कोई सिद्क़ की नीयत से कुर्बानी करे तो उसका जो जानवर का पहला कतरा गिरता है ये कफ़ारा है उनकी गुनाहों का, गुनाह का कफ़ारा है ये। और चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हाँ, उसमें जैसे ख़ुद मौलाना भी फरमा रहे थे कि जो कुर्बानी है उसको इबादत करके, इबादत समझ के करना चाहिए, ना ये कि इंसान जो है वो वीडियोस बना कर और दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात बनाए। तो ये वाक़ई है, महाराज एज़ाम भी इस उन्वान से फ़तवा देते हैं और
जहाँ पर फसाद का ख़तरा होता है तो हुक्म सानवी की बुनियाद पर जो हुक्म सानवी है उस हवाले से हराम का फतवा देते हैं। तो ये भी है कि बाज़ ममालिक में अगर इस किस्म का कोई चीज़ है तो इंसान, ये सिर्फ़ एक जानवर के हद तक नहीं, किसी हवाले से भी, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ममालिक में इस किस्म के मसाइल है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जो आपके घर में गोश्त है, आप जो है अगर साहिब इस्तिताअत है और आप मिसाल के तौर पे अगर आप कुर्बानी कर चुके हैं, कुर्बानी का जानवर जो है वो तहैया कर सकते हैं, तो इस हवाले से आपका फ़रीज़ा ये है कि इसका एक हिस्सा मसाकीन के लिए हतमन आप जो है वो वक्फ़ कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे महल्ले में होते हैं और ये गरीब होते हैं, हकीकतन अल्लाह इम्तिहान ले रहा होता है। तो ये सिलसिला है बहरहाल, और यकीनन बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से इम्तिहान लेता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से। तो उसमें से एक ये है कि जो मसाकीन है वो यकीनन साहिब इस्तिताअत लोग जो वहाँ पर कर सकते हैं मदद, उनके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको गोश्त खिलाएँ। तो ईद कुर्बान का एक मकसद यही है कि हम यानी अल्लाह की ऐसी कुर्बत हासिल करें कि यकीनन ये कुर्बानी इसको एक दर्स हमें जो है वो ज़ाहिर और बातिनन हमारे लिए हो सके। तो इस हवाले से भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और एक नुक्ता जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर कोई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, तो इस हवाले से भी होना चाहिए कि हम गोश्त के हवाले से मुस्तहक तक भी पहुँचाए, और अगर कोई इस पर कादिर नहीं है तो मिलकर भी कुर्बानी की जा सकती है। महनाज साहिबा गुजरात से इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सलामत रहें आप। इस वक्त यहाँ पर ईद कुर्बान है और यकीनन हिंदुस्तान में शायद ये शब अरफा है। मौला की खिदमत में आप सलाम पेश करें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अस्सलामु अलल हुसैन वल अली इब्निल हुसैन वल औलादिल हुसैन वल अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका मौला यज़ीदी बाबुल अवल। अस्सलामु अलैका सलाम। अस्सलामु अलैका रिदाए ज़ैन सलाम। अस्सलामु अलैका या मुदारे हुसैन। अल्लाहुम्मा कुल वली कलवजत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहा लाबै फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि शातिन वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरा व दलीलन फतुस्किन व ततवन व तुमत्तु फी हदल या मौला यस्मी करो पुरसा मुस्लिमीन के लिए सलाम भी कबूल करो। फिर शबेर फाकी रात में तो बस आसमान कर दो मेरे मौला, मुझे जीने का हौसला बुलंद कर दो, इस्तिकामत पैदा कर दो, बेजुस्म के साथ करते हुए निजात सेहत और कुल्ली करो और भी तंदुरुस्ती बेखौफ तरीके से आसान और बेहतरीन जिंदगी को कायम करो। शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ आपकी और इस दुनिया में मेरे मौला विलायत नहीं कर पाएंगे तुम्हें या ज़हरा ऐसा है या हुसैन मुस्लिम बेटे सलाम का पेश कर कबूल कर लो मौला। बीबी पानी अपने कबूल कर लो। सही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
शुक्रगुजार है नहायत, और आपसे गुजारिश है कि दीगर मोमिनीन के साथ भी नंबर को शेयर करते रहिए। शुक्रिया आपका। अच्छा, एक नुक्ता जो है वो, चूँकि आज यहाँ पर शब ईद कुर्बान है, तो इस हवाले से भी रिवायत जो है, रिवायात में इसका तस्करा मौजूद है। फरमाया मन क़ाम लैलतै ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह, अगर कोई शख्स दोनों ईदों में से, जो दोनों ईदों की रातें हैं, मंजूर जो है वो ईद फ़ितर और कुर्बान है, अगर इंसान इसमें इसको जो है वो इसमें ज़िक्र खुदा करे, यानी इसको जो है वो कायम करें, तो लम यमुत क़ल्बहु यौम तमूत क़ुलूब, तो उस शख्स का दिल नहीं मरेगा उस दिन कि जिस दिन लोगों के दिल मरे हुए होंगे, मर जाएंगे, यानी मंजूर क़यामत का दिन है। यानी क़यामत के दिन जो है ये शख्स, इसका दिल ज़िंदा रहेगा अगर इन दोनों जो ईद की रातें हैं इसमें इबादत इलाही को अंजाम दे, और इसमें जो है वो इबादत अंजाम दे। अच्छा, एक इसमें से खुसूसी तौर पे जो ईद के हवाले से एक अमल है जो बहुत ही ज़्यादा उसकी ताकीद की गई है, वो है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इस हवाले से भी एक रिवायत है, और रिवायत में वारिद है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फरमाया मन ज़ार क़ब्र हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लैलतन मिन थलाथतिल लियाल गफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर 3 रातों में से, साल की 3 रातों में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर कोई शख्स अंजाम दे, इन रातों में से किसी एक रात को, तो उसकी जो है तमाम गुनाहें जो है वो बख्श दी जाती है, मा तक़द्दम, जो उनकी गुज़श्ता गुनाह होती है या आने वाली गुनाहें होती है। तो क़ाला क़ुल्तु अय्य लयाली जुइलतु फ़िदाक, तो रावी कहता है कि मैंने सवाल किया कि मौला मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, ये कौन सी रातें हैं? तो हज़रत ने फरमाया क़ाला लैलतुल फ़ितर व लैलतुल अज़हा व लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, फरमाया कि उसमें से एक रात जो है वो ईद फ़ितर की रात है, कि अगर इंसान इस रात सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे। ईद ज़ुहा है, और 15 शाबान। माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं शबीर ज़ैदी साहब क़िबला बेल्जियम से, और सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। क़िबला कैसे मिजाज है आपका? खैरियत से इंशाअल्लाह? इलाही ज़िंदगी गुजर रही है, आपके लिए दुआ गो है आपके। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए, आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी। जी क़िबला। जी, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नहायत ही मेहरबान जनाब शबीर ज़ैदी साहब क़िबला बेल्जियम से अलील हैं, जिनकी आप अभी आवाज़ समात फरमा रहे थे। इनके लिए खुसूसी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़रूर आमीन कहें कि मौला इनको सेहत कामिल व आजिला नसीब फरमाए, और इनकी जो भी मुश्किलात है मौला मुश्किलात को हल फरमाए, और जो भी बीमारी है अल्लाह बीमारी को इनकी वजूद से मुसाफिर फरमाए, रफ़ा फरमाए, दफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। और ख़ुसूसी तौर पे दुआ गो है कि शबीर ज़ैदी साहब के तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहें आप, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें, और जितनी भी मोमिनीन किराम बहरहाल इस हवाले से तमाम मोमिनीन यकीनन हमारे लिए एहतराम के लायक है। मोमिन होता ही मुहतरम है, तो वो तो है, लेकिन बाज़ जो मुआविनीन है यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ ताउन फरमाते हैं, और या माली ताउन या मज़ीद बहुत सारे ऐसे उसमें, तो इन मोमिनीन के लिए खुसूसी हमारी दुआएँ करबला मुअल्ला में रहती है। तो रिवायत में अर्ज़ कर रहा था, तहज़ीबुल अहकाम शेख ताइफ़ा तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ये रिवायत नकल करते हैं कि अगर कोई शख्स सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे, इन 3 शबों में से जो एक शब आज है, अगर कोई शख्स ज़ियारत करे
वलाओ ज़ियारत राह दूर से ही क्यों ना हो। इंसान नहीं पहुँच सकता करबला, राह दूर से अगर कोई शख्स ज़ियारत करे तो फरमाते हैं कि अल्लाह जो है गफ़रल्लाहु ज़न मा तक़द्दमा व मा तअख़्ख़र, उस शख्स के गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, चाहे वो गुनाहें जो है जो पहले की गुनाहें हैं, गुज़श्ता की गुनाहें हैं, या आने वाले दिनों में जो गुनाहें आती है। अलबत्ता जो आने वाली गुनाहें हैं यकीनन इसकी तौजीह होती है। तौजीह इस उन्वान से भी है कि यह शख्स जो है अगर सहवन उनसे गुनाहें सरजद हो जाए, यानी वो ईमान पे कायम है लेकिन सहवन गुनाहें उससे सरजद हो जाती है, तो अल्लाह वो भी माफ़ कर देता है। बहरहाल यानी इस कदर जो है इसकी अज़मत है, और खुसूसन ईद के दिन यानी सबसे बड़ा अमल यह है कि इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजा लाए। रोज़ी ईद भी इसी तरीके से है। और जो अरफा है, यौम अरफा के लिए बड़ी अजीब रिवायात है, और कई बहुत ज़्यादा रिवायात इस हवाले से मौजूद है कि यौम अरफा के दिन भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ियारत है वो बल्कि एक खुसूसी एक मखसूस ज़ियारत है जो यौम अरफा उसको पढ़ते हैं। तो ये वो मौक़े जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन दिनों को दूसरे दिनों के ऊपर फजीलत दी। अल्लाह ने उन दिनों में भी ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को मुस्तहब करार दिया। यानी आप गौर करें कि इस कदर ज़ियारत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन के लिए ज़रूरी है। और इसकी उलमाए किराम एक वजह ये भी बयान फरमाते हैं कि क्यों इस तरीके से ज़ियारत हर दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तहब, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तहब, वजह क्या है? तो फरमाया कि इसकी वजह यह है कि गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे बंदों के ऊपर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस कदर उनके लिए ज़रूरी और लाजमी है, कि जहाँ जो दिन है मैंने उस दिन में सबसे अजीम अमल ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को रखा। तो ये वाक़ईन इसी तरीके से हैं कि इंसान जो है वो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को हद्दुल मक़दूर तर्क न करे, हद्दुल मक़दूर तर्क न करे, और ज़ियारत करता रहे। अपने दिल में ये ख्वाहिश भी रखे और दुआ भी करता रहे कि अल्लाह जो है वो हमारे दिलों में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को और आपकी ज़ियारत को रखें। ये बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक बदबख्त इंसान पैदा हो जाए जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शौक़ न रखता हो, उसके दिल में शौक़ न हो, वो यकीनन बदबख्त ही होगा। चूँकि जो मशहूर रिवायत है, फरमाया कि मन अरादल्लाहु खैरा, जिसकी अल्लाह खैर का इरादा कर ले उसके दिल में हुब्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डाल देता है। क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन व ज़ियारतिही, हुब्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके दिल में डाल देता है। तो ये मुसल्लमात में से हैं कि ज़ियारत सैयद शुहदा किस कदर ज़रूरी और लाज़मी है। और मेरे अज़ीज़ों, इस वजह से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आपके लिए खुसूसी ये प्रोग्राम लेके आते हैं। सैयद शारिब हुसैन साहब, शारुख हुसैन साहब दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला की फ़िज़ाओं में है। मौला को सलाम कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहे दुआ कर लीजिए, चूँकि दुआएं इस मकाम पे कबूल होती है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये कोई दुआ करना चाहे या मैं आपकी तरफ से दुआ कर देता हूँ। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए, और जो भी आपकी सारी हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए। अगर रिज़्क़ और ईमान में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, और आपके तौफ़ीक़ात खैर में मौला इजाफ़ा फरमाए, और जी, और आपके बच्चों को और घर वालों को मौला अपने ज़ामान में रखे। और मैं एक अर्ज़ ये भी करूँ कि अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए इसमें मोमिनीन नज़र का अहतमाम भी करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? हज़रत दुआ कर देना। जी इंशाअल्लाह, चले बेहतर है इंशाअल्लाह। मौला आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामत रहें आप। शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी मोमिनीन किराम, बहरहाल इस हवाले से जो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है उसकी बड़ी फ़जीलत है। और असल में
एक रिवायत में इस तरीके से हैं कि राह दूर से अगर इंसान इरादा कर ले तो वो 3 दफ़ा कहे सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, ये 3 दफ़ा कहें और फिर तवस्सुल करें। और या अगर इंसान जो है वो ये जुमलात उसको हिफ्स नहीं हो रहे तो उसको जो है वो अपनी ज़बान में ज़ियारत करें। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम और दरूद भेजें। यानी ये इसकी जो है बड़ी फजीलत है कि इंसान अपने एतबार से वलो किसी भी ज़बान में हो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजे, दुरूद व सलाम भेजे और इस चीज़ की जो है वो यकीन रखे और इसका अकीदा रखे कि जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को हम दरूद और सलाम भेज रहे हैं, दुनिया और आखिरत की खैर इसमें है, दुनिया और आखिरत की खैर है। यकीनन अगर इंसान को कोई एक मर्जा फरमा रहे थे कि अगर किसी को दुनिया चाहिए वो भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती है, अगर किसी को आखिरत चाहिए वो भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से। यानी इस ज़ियारत में अल्लाह ने कोई ऐसा खैर रखा है कि जो मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत में ये चीज़ें उसके काम आती है, दुनिया और आखिरत में। और रिवायात आपने मुतवातिर पढ़े हैं ज़ाकिरीन से, उलमा से, आपने ख़ुद भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। तो रिवायात में इसी तरीके से है कि अगर किसी की किल्लत रिस्क है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, कोई अगर मरीज़ है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, कोई अगर खौफज़दा है करबला जाएँ ज़ियारत करें। इस चीज़ की जो है वो फ़िक्र न करे कि अगर मैं चला जाऊंगा और फिर मेरे पास ज़ाहिर है पैसे नहीं रहेंगे, नहीं, इसकी फ़िक्र न करें, बल्कि ख़ुद इमाम का वादा है कि उसको मिलता है दुनिया में जो वो खर्च करता है उसके 10 गुना या उससे ज़्यादा 40 गुना ये मिलता है उसको, उसके रिस्क में से इजाफा होता है, कमी वाक़या नहीं होती। मासूम ने फरमाया कि नमक के साथ रोटी खाओ लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क न करो। इस कदर यानी इसकी अहमियत है। इंसान किस कदर, आप इसी हदीस को देख लीजिए, इंसान क्या नमक के साथ रोटी खाना यानी अशद्द फ़क़र आप बर्दाश्त करो, अशद्द फ़क़र। इसकी 2 तरीके से तफसीर हो सकती है। एक तो ये कि बचत करो पैसों की, रोटी यानी खाना ना खाओ लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचा लो, एक तफसीर इसकी ये है। यानी सालन ना खाओ, या उस ज़माने में शायद खजूरें वगैरह हैं, कहते खजूरें ना खाओ, सालन ना खाओ, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाओ, इस कदर। और एक ये है कि अगर इस राह में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वलाओ नमक से आपको रोटी खानी पड़ जाए, ज़ाहिर है मुश्किलात होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को करबला तक पहुँचाओ। करबला ये है, ये मकाम है करबला का। और इसी वजह से तूल तारीख़ में अगर हम गौर करें तो लोगों ने मुख्तलिफ सवाल आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम से किए हैं। मौला हाकिम वक्त की तरफ से ख़तरा है, इमाम ने नहीं फरमाया कि ना जाओ, कहा फिर भी जाओ, जान का ख़तरा। हालांकि तकिया हमारे दीन में किस कदर उसकी अहमियत है। फरमाया कि तकिया करो, आपकी कत्ल से आपकी जान हमारे लिए बेहतर है। यानी अगर आपको हमारा दुश्मन कोई कत्ल कर दे ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आपकी जान जो है वो हमारे लिए कीमती है, मासूम ने फरमाया। लेकिन जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो वहाँ पर मासूम नहीं फरमाता कि न जाएं, अशद्द ख़तर में आप जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क न करें। यानी वही मासूम जो हमें तकिए का दर्ज देते हैं कि तकिया करो, कोई दुश्मन ऐसा ना हो कि आपको कत्ल कर दे बाज़ हसास इलाकों में। लेकिन जहाँ पर हाकिम वक्त ने तय किया हुआ है कि राह करबला पे जो मिले उसको कत्ल कर दो, मासूम ने नहीं फरमाया कि ना जाएं, बल्कि फरमाया कि जाया करें। खैर दुनिया वाल आखिरा इस ज़ियारत के अंदर है, अंदाज़ा करें। यानी इस कदर जो है इसकी अहमियत है। एक रावी ने सवाल किया, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, मौला हम जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते में दरिया है, और दरिया जो है वो खूनखार दरिया है, वहाँ पर कश्तियाँ अक्सर गर्क हो जाती है,
तो क्या हम क्या कर सकते हैं? और कोई रास्ता नहीं है, दरिया से आना पड़ता है, दरिया भी ख़तरा है, कश्ती के लिए ख़तरा है, जान के लिए ख़तरा है। इमाम ने नहीं फरमाया कि आप लोग ना आएँ, फरमाया वो कश्ती जो दरिया में गर्क होती है वो दरिया में नहीं जन्नत में गर्क होती है। यानी इस कदर जहाँ पर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को इस कदर मोहब्बत है अपने शियों से, इस कदर मोहब्बत है शियों से अपने, वहाँ पर जब ज़ियारत की बारी आती है तो मना नहीं फरमाते कि ना जाएं, बल्कि फरमाते हैं जाया करें। हालांकि मैं इस उन्वान से भी अर्ज़ करूँ, बहुत सारे रिवायात मौजूद है कि जब मासूम से जब सवाल किया गया नासबी कौन है मिसाल के तौर पर, तो मासूम ने फरमाया कि जो हमारा दुश्मन होता है। रावी ने कहा सिर्फ आपका दुश्मन? कहा नहीं, हमारे शियों का दुश्मन भी नासबी है। यानी शिया इस कदर अहमियत के हामिल है कि मासूम फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे शियों का दुश्मन नासबी होता है। यानी इक्तिफा इस चीज़ पे नहीं है कि सिर्फ हमारा दुश्मन, कहा हमारे शियों का दुश्मन और हमारा दोनों का दुश्मन नासबी होता है। यानी शिया के लिए ख़ास अहमियत के हामिल है। बहुत सारे रवायात आप देखते हैं, वह कहते हैं शियातना शियातना शियातना, हमारे शिया हमारे शिया हमारे शिया। तो आप यानी इस कदर जो है इसकी अहमियत है, इसकी फजीलत है कि इंसान जो है वो किसी भी हालत में ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क नहीं कर सकता। बड़े अजीब रिवायात है। फातिमा साहिबा चनियोट से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ शबे ईद कुर्बान करबला मुअल्ला तक पहुँच रही है। चनियोट से आपकी आवाज़ करबला में वसल है। मैं चाहता हूँ कि मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें, कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी बड़ी रात को ये सादत दी, और मौला की बारगाह में मेरी तरफ से ढेर सारे दुआ सलाम जो सुन रहे हैं उनको भी, और सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और बाकी ये कि मौला जल्द अज जल्द अमन अमान लाए और दोबारा रास्ते बहाल करें ताकि हम जैसे ज़ायर जल्द अज जल्द आ सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौला आपको जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो भी आपकी हाजात शरइया है मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह हवाइज शरइया को। और मैं बहन एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन किराम की जो दुआएं हैं उनकी कबूलियत के लिए एक नज़र करते हैं। इंशाअल्लाह जब दुआएं कबूल होती है फिर नज़र की अदायगी होती है, तो इंशाअल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? क्या किस तरह से शामिल होते हैं? आप नज़र की नियत कर लें, नज़र का इरादा कर लें। इंशाअल्लाह जब आपकी दुआएं जो भी है इस वक्त आपकी दिली दुआएं हैं अगर कबूल हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह आप वो नज़र अदा कर लीजिएगा। तो आप इसमें शामिल होना चाहती हैं? जी मैं ज़रूर शामिल होना चाहूँगी। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा, 72 शुहदा में से किसी एक हस्ती का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से, ताकि एक वसीला बन सके और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगी आप? किससे ज़्यादा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आपके फैमिली को मौला अपने ज़ामान में रखे। शुक्रगुजार है, और जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारा नंबर शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इसमें शामिल हो सके। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ से ये सिलसिला तवस्सुल है और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि मोमिनीन किराम जो मोहब्बत करते हैं उनको देखें। मैं इस हवाले से, चूँकि टाइम भी हमारा तकरीबन इंतहा पर पहुँच रहा है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको बातिनन जिन लोगों ने इसको दर किया, वो इसके बारे में जो नज़रियात रखते हैं। हम लोग तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हम जैसे नॉर्मल लोग और आम लोग, बंदे भी दो किस्म के होते हैं ना, एक आम बंदा होता है, एक ख़ास होता है। तो जो हम आम बंदे हैं और आम से लोग हैं, तो आम लोगों तो ज़ाहिर है सिर्फ हम रिवायात और इन चीज़ों को, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं, किस कदर हम लोग, हमारा दिल का जो हाल है वो अच्छा हो जाता है। मैंने बहुत सारे ज़ायरीन किराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं
سب کے مسائل ہوتے ہیں, سب کے مشکلات ہوتے ہیں. کوئی غریب ہے, کوئی کسی کا مریض ہے ان کے عزیزوں اور اقارب میں, کوئی جو ہے وہ خود موذی امراض میں مبتلا ہو چکا ہے, کوئی جو ہے وہ بچے ان کے نہیں ہیں, کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, کوئی جو ہے کسی ظالم نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے. ہزاروں مسائل ہوتے ہیں, ہزاروں مسائل. لیکن خدا گواہ ہے کہ جب ہم کربلا میں ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے دل میں ایک عجیب راحت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. یعنی ایک شخص جس کا بھی تازہ اس کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے یا اس کا والد فوت ہوا ہے وغیرہ, کس قدر انسان دکھی ہوتا ہے. لیکن جب سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, دل اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. مرہم, جیسے کہ کسی زخم کے اوپر انسان مرہم رکھ دے, اس طریقے سے. تو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے. بہت سکون ہے اس میں. زیارت عاشورہ, اکثر علماء کرام سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ حضرت ہم پریشان ہیں, اکثر پریشان رہتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے ہمیں, کیا کریں؟ زیارت عاشورہ کی, زیارت عاشورہ کی صلاح دیا کرتے تھے کہ آپ زیارت عاشورہ کثرت سے پڑھیں. بہرحال ہمارا چونکہ ٹائم انتہا پر ہے, اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ العزیز ہمارے برادر محترم عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ آپ کے ساتھ مخاطب رہیں گے, مہمان کے ساتھ انشاءاللہ. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मोहब्बतों का शहर, अक़ीदतों का शहर। 9 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी क़मरी, अरफा का दिन, वो दिन जिस दिन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का को अलविदा किया और ज़ियारत अलविदा पढ़ी, सलाम किया मक्का को, सलाम किया काबा को और आखिरी सलाम कहकर मेरे मौला ने एक दुआ तिलावत फरमाई है जिसे दुआए यौम अरफा शुमार किया जाता है। दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुतआल से खूब मुनाजात फरमाए हैं। आज के दिन को दुआओं का दिन करार दिया गया और फरमाया गया कि आज के दिन में हमें खूब दुआएं मांगनी हैं और दूसरे शुगल किसी काम से या किसी भी और मसरूफ़ियत से बचकर फ़कत और फ़कत दुआ और इबादत के लिए कहा गया अपने आप को वक्फ़ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी भी इबादतों में है और मोमिनीन अज़ादारी भी बरगुज़ार कर रहे हैं। बहरहाल 26 मई 2026 ईस्वी है, मंगल का दिन था। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन। इन तीनों आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। कल का दिन 10 ज़िलहज्जा होगा और मुसलमानों की ईद है और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। वैसे तो जिस दिन मोमिन मुसलमान कोई गुनाह ना करे, मासूम अलैहिस्सलाम ने उसे यौम ईद करार दिया है। बहरहाल कल के दिन में आमाल और भी हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो आप सब के लिए हम भी यहाँ पर ज़ियारत पढ़ेंगे, आप हमारे लिए वहाँ पर दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए यहाँ पर भी दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खुदावंद मुताल हर आने वाला दिन मोमिनीन के लिए अमन और सुकून का गुजारे। एक मोमिन जो कि हाजी ज़वार हुसैन लंगा मुल्तान से हैं, सालार कारवान बाबुल हवाई थे, जिनका आज इंतकाल हो गया। खुदावंद मुताल उनके खानवादे को सब्र अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो मोमिनीन अगर कुछ तिलावत करके पढ़ सकें तो अपने भी मरहूमीन को याद रखिए और हाजी ज़वार हुसैन लंगा साहब को भी याद रखिएगा। और मुख्तलिफ़ जो भी आपके जहन में दोस्त अज़ीज़ आते हैं उन सब के लिए फ़ातिहा तिलावत कीजिएगा। और ज़ाहिरी बात है इन दिनों के अंदर मरहूमीन की अरवाह को भी याद रखना चाहिए और उनके लिए भी कुछ पढ़ कर तिलावत करना चाहिए और उनकी तरफ से सदका खैरात जो भी आपकी तरफ से नेक अमल हो सके अंजाम देना चाहिए। तो बहरहाल इनके लिए भी आप, हाजी ज़वार हुसैन लंगा साहब का इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी आप पढ़ दीजिएगा और मोमिनीन को भी, अपने असातिज़ा दोस्तों अज़ीज़ों सबको याद रखिएगा, उनके लिए भी फ़ातिहा की तिलावत फरमाइएगा। आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। खुदावंद मुताल आप सबको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। बहरहाल उम्र का कोई पता कोई नहीं है, किसकी कब आखिरी सांस हो, लिहाजा गुनाहों से तौबा मांगते रहना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम की साथ तवस्सुल आपका हमेशा बरकरार रहे।
ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं, आइए उनको मौला की बारगाह में पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरमा ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। अरफा का दिन गुजरा, दुआओं का दिन था, शब ईद है, ईद कुर्बान की शब है, आज की शब भी दुआओं की शब है। तो चाहूँगा करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह, अस्सलाम वालेकुम मौला गाजी अब्बास अलमदार, 72 शहीद करबला की बारकतस मुक़द्दस में सलाम का नजराना पेश करती हूँ और बादशाह हसन हुसैन और मौला अब्बास अलमदार को उनकी बहन की गम का पुरसा पेश करती हूँ। उनकी की शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील बाबू हवाइज मुस्लिम बिन अकील, उनके बेटे मोहम्मद इब्राहिम की शहादत का पुरसा मौला हसन हुसैन मौला अब्बास अलमदार की बारकतस मुक़द्दस में पेश करती हूँ। बीबी ज़हरा बीबी उम्मुल बनीन की उनसे दुआ गो हूँ कि बीबी रुक़ैया शहजादी उनके वसीले से में आका के ज़ुहूर में ताजीर हो, इमाम ज़माना का ज़ुहूर में आसानियाँ पैदा फरमाए। पाक सैयदा फातिमा ज़हरा के खाली दरबार से उठने का वास्ता है मेरे मौला, आज के अरफा के पाक मुक़द्दस दिन का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर हो। जो बीमार है, बीमार करबला का सदका उन्हें शिफा अता फरमाए। नजफ अब्बास को, हबीब अली को, हुरैन शमशाद अख्तर को, मोहम्मद शामिर को शिफा अता फरमाइए। अमीर मौला हुसैन बादशाह जितने बीमार हैं, आपको आपकी बहन बीबी रुक़ैया के उजरे घर का वास्ता मौला सबके घरों में आले मोहम्मद का साया रखिए और हम सब की परेशानियां हैं जो मोहम्मद आले मोहम्मद के वसीले से दूर फरमा दी। जो बीमार हैं उनको शिफा दे दी, जो ब्रेन ट्यूमर है, छाती, जिसको जो मर्ज है मेरे मालिक शुगर से मेरे सब की बीमारियां खत्म करते, कैंसर की, जिसको जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, मेरे मौला हुसैन बादशाह आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, बेशक कोई नहीं जाता मेरे मौला, ना मैं कभी गई हूँ ना जाना चाहती हूँ मेरे बादशाह हुसैन। मेरी जो मुश्किलात हैं आप सबसे वाकिफ हैं और दूर फरमा दीजिए। नजफ अब्बास फिजा दूर के अच्छी नसीब फरमाइए, हुसैन ज़रा भी वली का अच्छे नसीब फरमाइए। यावर अब्बास के वीज़े में जो परेशानी है मौला, जो भी परेशानी है, रुकावट है, उसकी कामयाबी में ख़त्म फरमा दीजिए। हुसैन ज़हरा को भी कामयाब कर दीजिए। बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन मेरी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। मेरी जो परेशानी है वो आज रात ही ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब फजाली मोहम्मद। माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपके घर में जो जो परेशानियाँ हल फरमाएँ, आपकी वालिदा को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और मोमिनीन को भी शेयर फरमाइएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखें। मोमिनीन प्रोग्राम में शरीक होते हैं, मौला से मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी अकीदत को मौला की बारगाह में पेश करते हैं और ये यकीनन मोमिनीन के लिए भी शरफ़ है और हमारे लिए भी शरफ़ है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होकर मौला से तवस्सुल करते हैं, तो हम भी साथ में मुतवस्सिल हो जाते हैं और अपनी हाजात मौला से तलब करते हैं। आपकी दुआओं के साथ साथ कई दुआएं ऐसी होती हैं जो हो सकता है किसी ने कही हो, वो जहन से निकल जाती हैं कभी कभार। तो आप जब दुआएं करते हैं तो हम अपने ज़िम्मा दुआओं को भी याद कर रहे होते हैं। और जो बीमार हैं, बीमारों के लिए काफ़ी मरतबा ऐसा होता है, कुछ मोमिनीन ख़ास दुआएं ऐसी करते हैं जो हमारे जहन में नहीं रही होती कभी कभार दोस्तों की, तो उन दोस्तों को भी हम याद कर लेते हैं आपकी दुआओं के वास्ते से। और यकीनन आप अपने लिए दुआ करते हैं। सब मोमिनीन अपने अपने दिलों के दर्द के साथ साथ अपनी परेशानियों को तज़किरा करके, याद करके आपके साथ वो भी आमीन कहते हैं। क्या पता किसकी ज़बान की तासीर से, किसके लिए अल्लाह ने कबूलियत की घड़ी लिखी हो, उसकी आमीन से आपकी हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। लिहाजा दुआएं मांगते रहना चाहिए। मोमिन की ढाल है दुआ, अद्दुआ ओ सिलाहुल मोमिन। और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की का असलहा है, अम्बिया का भी असलहा है, मोमिन के लिए भी असलहा करार दिया गया है। तो लिहाजा हमें
दुआएं मांगना चाहिए, तवस्सुल करना चाहिए। और आज की शब जो है शब ईद है, हमें ईद उस दिन को कहना चाहिए जिस दिन हम गुनाहों से बच जाएं, विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम में हमें तरक्की हो, उनकी मार्फत में हमारे इजाफ़ा हो, हम उनकी अकीदत को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें, वो हमारे लिए ईद की कैफियत। एक दिल को सुकून का माना है ना एक ईद का, तो सुकून हमारा मौला का ज़िक्र करके होता है हासिल। तो लिहाजा हुसूल सुकून कल्ब के लिए मातम ज़रूरी है, लिहाजा हम मौला का मातम करते हैं तो हमें सुकून हासिल हो जाता है, दिल को एक तसल्ली सी हो जाती है। बहरहाल हर वक्त हम मौला का गम याद रखे हुए हैं, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वाजिबात हैं उनको भी याद रखना है। तो लिहाजा इसके साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत को याद करने से ईद कोई ज़ाया नहीं होती, और यकीनन ईद के दिन ईद नमाज़ पढ़ने से कोई ऐब नहीं है। इसके ईद नमाज भी पढ़ें और मौला का ज़िक्र भी करें, हर जगह पर ज़िक्र होना चाहिए। चलें किसी भी बहाने से कोई ज़िक्र कर रहा है, नेकी ही कर रहा है ना, नेकी करने दें, करिए, खूब कीजिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मौला का नाम लीजिए, इसी से नजात है हमारी। लेकिन मौला के नाम के साथ साथ मौला के क़याम को भी याद रखना है, जो उन्होंने फरमाया उसको भी अमल में लेकर आना है। बहरहाल अमली तौर के ऊपर हम विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की का इजहार उनकी फरमाइश को पूरा करके करते हैं, जो उन्होंने फरमाया है वो अज़ादारी भी है, मातमदारी भी है, मोमिनीन का ख्याल रखना भी है, हमसायों का ख्याल रखना भी है, अहले अयाल के लिए खराजात के लिए कोशिश करना भी है। ये सब चीज़ें जब हम करते हैं ये हमारी तरफ से मौला की बारगाह में मोहब्बत का इजहार होता है, और मौला के साथ हम अपनी अकीदत को ज़ाहिर करते हैं इन चीज़ों के ज़रिए से। तो लिहाजा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लिहाजा 9 ज़िलहज अरफा का दिन, ऐसा दिन जिसमें मोमिनीन अपनी पेशानियाँ सजदों में रखते हैं, इबादत करते हैं, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी करते हैं, और जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हतमन करना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से 2 ज़ियारतें ऐसी वारिद हुई हैं, 2 ज़वात के लिए जो बिन्नो अन एक जैसी हैं। एक तो मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, और एक जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बिल्कुल जनाब अब्बास मौला अलमदार अलैहिस्सलाम जैसी है, और इसमें दोनों को मौला का अच्छा प्यारा बयान किया गया है, और इसके अंदर दोनों से अच्छी जो कैफियतें सादिर हुई हैं कि इन्होंने सलाम के दौरान जो जुमले आए उनमें यही था कि सलाम हो आपके ऊपर जिन्होंने अपने इख्तियार को बेहतरीन इख्तियार के तौर पर इख्तियार किया, और वो उनका इख्तियार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाना था। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो कुर्बान हुए, आशूर के दिन कुर्बान हुए, कुछ आशूर से पहले भी कुर्बान हुए, और कुछ आशूर के बाद भी कुर्बान हुए, कुछ आशूर से काफ़ी अरसे 2 साल बाद भी कुर्बान हुए, जो करबला के अंदर ज़ख्मी हो गए थे। तो बहरहाल उनकी एक तवील फ़हरिस्त है जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत पे वक्तन फ़वक्तन हम बयान करने की सआदत हासिल करते रहेंगे। तो जिनमें से जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जो भेजे गए 3 तो मशहूर हैं, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम और जनाब सुलेमान बिन यक्तर, अब्दुल्ला बिन यक्तर और सुलेमान बिन अब्दुल्ला, ये मौला के सहाबी थे, और सुलेमान खुरद ख़िज़ाई ये मौला के ऊपर शहीद हुए हैं, बाद में शहीद हुए हैं। बहरहाल जो मौला के सफ़ीर थे उनमें सुलेमान बिन यक्तर जो हैं ये बसरा में शहीद हुए, इन्हें भी इसी मलऊन इब्ने ज़ियाद ने शहीद किया है, इब्ने ज़ियाद ने इन्हें भी शहीद किया है, और ये फिर बसरा से लौटा है
कोफा और कोफा आकर इसने जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का सामान किया है। इस मलऊन ने जब ये कोफा में वारिद हुआ तो इसने बनी हाशिम की तरह से, क्योंकि कोफा के अंदर खबर पहुंच चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचने वाले हैं, तो इस मलऊन ने बनी हाशिम का जो रूप था वो धारा, काला मामा पहन लिया, काला लिबास पहन लिया, फ़कत आँखों से देख रहा था। लोग समझे कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। मलून बगी इब्ने बगी ये पहुँचा तागिया, वहाँ पर पहुँचा तो लोग समझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। लोगों ने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ें बुलंद की। सबको देखता हुआ ये वहाँ पर पहुँच गया। जी, मरियम साहिबा लखनऊ से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, और जिस तरीके से आपको मालूम है करबला मोहल्ला में 9 का दिन गुज़रा, और 9 का दिन अरफा का दिन है, और गालिबन इंडिया में कल अरफा का दिन होगा। बहरहाल अरफा का दिन और रात दोनों इबादत की रातें हैं, और इसमें दुआ मांगनी चाहिए, और इसमें किसी और काम में मसरूफ़ हुए होने के बजाय ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत हो, और मौला की तवस्सुल से मौला की मार्फत के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। बहरहाल आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुकाएं, मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्ना अमीरुल मोमिनीन व इब्ना सय्यदुल वसीम, अस्सलामु अलैकुम इब्ना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा जल्ले वलियतल फरज, इल्तिमा से दुआ। मसल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहने की सआदत हासिल हो। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब मौका मिले इसमें कॉल फरमाते रहिएगा। प्रोग्राम का टाइम इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और मोमिनीन को भी तरगीब दीजिएगा ताकि वो भी इसमें शरीक हो सकें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला सेहत और तंदुरुस्ती से रखें। फ़ी अमानिल्लाह। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। मोमिनीन मुख्तलिफ़ हालात में हैं, मुख्तलिफ़ कैफियत में हैं, लिहाजा ईद का दिन जो होता है, आपके घर अगर अच्छा खाना पके तो गरीब रिश्तेदार, गरीब हमसाए या गरीब दोस्तों के घर, अजीज़ों के, जानने वालों के घर तो ज़रूर कोशिश करें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ख़र्च करें, बज़ल करें, उन्हें हदिया करें, ताकि उनके यहाँ भी थोड़ी बहुत कोई रौनक आ जाए, उनकी भी मुश्किल हल हो जाए। लिहाजा कोशिश तो वैसे भी आप माशाल्लाह करते हैं। मोमिन होता ही वो है जो मौला की सीरत पर अमल करता है, और गरीब परवर होता है मोमिन। तो लिहाजा आपने मोमिनीन का भी ध्यान रखना है, अपने रिश्तेदारों का भी, हमसायों का भी ख्याल रखना है। तो लिहाजा अगर आप कुर्बानी करें, बहरहाल हमारे यहाँ कुर्बानी जो महंगाई का एक पहाड़ टूटा हुआ है, जो कुर्बानी किया भी करते थे, काफ़ी सारों के दरामद में, आमदन में जो कास्ती आई है, कमी आई है, मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो काफ़ी सारे मोमिनी तहीदस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से वो कुर्बानी से भी कासिर हो गए हैं। तो अपना हिस्सा मिला लेते हैं किसी के साथ, ये भी चले, कुर्बानी की किस्म है, या कुछ के पास ये भी नहीं है, नादार हैं, वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप, एक दोस्त ने जिस तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में लिखा हुआ था, फ्रिज में गोश्त को संभाल कर रखने के बजाय
ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें अच्छे से पॉलीथीन बैग्स के अंदर, जिन्हें हम आम ज़बान के अंदर शॉपर कह लिया करते हैं, वो जो थैलियाँ सी होती हैं प्लास्टिक की, उनके अंदर डालें और जल्दी जल्दी बांट दीजिए ताकि वो ख़राब होने से बच सकें। तो लिहाजा गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसके हिस्से बनाएं और बांटते चले जाएं, यकीनन वो ख़राब नहीं होगा। बहरहाल आजकल का दौर ऐसा बन गया है कि कुर्बानी करना भी एक मार्का बनता जा रहा है, और ख़ुसूसन जानवरों की कीमतें जो ईद के दिन महंगी तर हो जाती हैं वो मज़ीद इम्पॉसिबल बना देती हैं। और आम हालात में भी अब जो कीमत होती जा रही है गोश्त की, उसमें बकरा, भेड़, दुम्बा या कोई जानवर की कुर्बानी करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए और अज़ीज़ों को याद रखना चाहिए, प्यारों को याद रखना चाहिए, ताकि आपके माल और रिज़्क में अच्छा बांटने से रिज़्क बढ़ता है। इल्म जिस तरीके से कम नहीं होता, इसी तरीके से रिज़्क को भी अगर मिल बांट कर खाया जाए तो इसमें बरकत आती है। लिहाजा कोशिश करना चाहिए रिज़्क हलाल कमाएं अव्वल तो, और दोस्तों अज़ीज़ों के लिए अपने इख्तियार करें ताकि उनको भी हम बांट सकें और उनके साथ भी अपना हिस्सा मिला सकें। अरफा का दिन गुज़रा, शब आ गई ईद की। आज की शब बेदारी की बड़ी अहमियत है, जो बेदार रह सके दुआएं मांगनी चाहिए, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी चाहिए, मखसूस नमाज़ें हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। अज़ादारी की शाम है, मौला जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन गुज़रा, तो इस मुनासबत से शाम में भी कुछ मकामात पर अज़ादारी होती है, तो मोमिनीन अज़ादारी भी करते हैं, और कुछ जो कि मुतमव्वल हैं वो अपने लिए जानवर का इस्तेमाल कर लेते हैं कुर्बानी का, तो उसकी भी कुछ देखभाल कर रहे होते हैं। बहरहाल मौला का ज़हूर होगा तो हकीकी ईदें मनाई जाएंगी। जब तक मौला का ज़हूर नहीं होता यही कैफियत है और इन्हीं मुश्किलात में हैं हम, और मौला की मोहब्बत को हम दुनिया में पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मौला का इंतज़ार कर सकते हैं। लिहाजा हमें अच्छा ईद के दिन के अंदर दुआए नुदबा की तिलावत करना भी मुस्तहब्बात में से है। अपने वक्त के इमाम को तो वैसे ही हम याद रखते हैं और उनके लिए हम दुआएं करते हैं, तो लिहाजा हम इन दिनों में मौला को भी खूब याद करते हैं। तो लिहाजा जो सिलसिला चल रहा है उसके अंदर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अरफा के दिन ज़ियारत की फ़ज़ाइल हम कल पढ़ चुके। बहरहाल मौला की ज़ियारत करनी चाहिए, और इसी तरीके से अब दो नूर के एक जैसे मनाजिर निकले, यकसां ही नबी इमाम ज़ाहिर निकले, कनआन से कहने लगे यसरब एक दिन, यूसुफ थे गिरे चाह में बाकिर निकले। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की भी शहादत का दिन गुजरा है। और अच्छा एक और बात जो हम बार बार करते हैं कि मौला ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के बाद 10 साल तक अज़ादारी करने के लिए माल को मुख्तस फरमाया था कि मक्का में जाकर हमारे लिए अज़ादारी बरगुज़ार की जाए। पैसों किस काम आने थे? यकीनन मौला की तरफ से पानी, खजूरें या और जो हस्ब इम्कान ग़ज़ा ताम वग़ैरह हो वो तकसीम किया जाए, इस मकसद के लिए मेरे मौला ने अपनी तरफ से माल को मुख्तस फरमाया था। बहरहाल हम मौला की बारगाह में हैं और इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि मौला हर मुश्किल जो भी है उसको मोमिनीन से दूर करें। और मुश्किलात तो ज़िंदगी में होती ही हैं, लेकिन इन मुश्किलात को मोमिनीन के लिए आसान फरमा दीजिए। मोमिनीन में या तो ताब ज़ब्त दे दीजिए या फिर उनको ये मुश्किल को सहने वाला ऐसा तरीक़ा दे दीजिए जिसके ज़रिए उनके लिए जो भी मुश्किल आए आसान होती जाए। मसलन अगर माल की मुश्किल है तो इतना माल दे दीजिए कि अगर माल की कमी भी आए तो उस माल की मौजूदगी में उन्हें तकलीफ़ ना हो। जी, इस वक्त हमारे साथ मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब कराची से शरीक महफ़िल हुए हैं। आइए हम उनसे कनेक्ट होते हैं और उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद।
जनाब मौलाना मौला अली यकीनन आप खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है परवरदिगार का एहसान है, आप खैरियत से इंशाअल्लाह। मौला का करम है और आपकी दुआएं हैं। मौला आपको सलामत रखें। किबला जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि इराक थोड़ी सी आवाज़ अगर आपकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें आपकी, मेरे पास आवाज़ कम आ रही है। जी वो कंट्रोल रूम से सेट कर देंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। जी वो सेट कर देते हैं आवाज़ को हस्बे ज़रूरत। और किबला दिन गुज़रा अरफे का, आने वाला दिन ईद का है, एक करबला मोहल्ला में, लेकिन पाकिस्तान में भी करबला के बराबर ही ईद होगी क्योंकि बराबर ही चल रही थी तारीख़ें। तो इस मुनासबत से किबला चाहूँगा कुछ आपसे फैज़ हासिल किया जाए, तो किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, इस मौजू पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक वजूब का ताल्लुक़ है कुर्बानी के हवाले से, तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक वाजिब उन लोगों पर है जो इस वक्त मिना के मकाम पर मौजूद है, हज के लिए गए हुए, जिन पर हज फ़र्ज़ हो चुका है, उनके लिए कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, वाजिब है। इसके अलावा दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान मोमिन रहते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और बहुत ताकीद है, ताक़त रखते हैं कि बारगाह में जानवर ज़िबा करें, कुर्बान करें। लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है वो ये कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश करें। वाजिब फ़कत उन्हीं लोगों पर है जो इसे हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इज्तिमाई कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है? कुर्बानी जहाँ तक मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानी करना ये भी एक फजीलत की बात है कि मोमिनीन मिल के आपस में एक जानवर खुदा की बारगाह में ज़िबा करें। और उसमें जहाँ तक मुस्तहब कुर्बानी का ताल्लुक़ है, उसमें हिस्सों के हवाले से कोई क़ैद नहीं है। अगर खुदा की बारगाह एक बकरा भी खुदा की बारगाह में अगर कुर्बान कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर कई मोमिनीन मिल के अगर वो खुदा की बारगाह में इखलास के साथ कुर्बानी करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी सआदत की बात है। यानी मोमिनीन का इज्तिमाई तौर पर जमा होकर अजीम इबादत में शरीक होना एक फजीलत की बात है, सआदत की बात है। लिहाजा इज्तिमाई इस इन्वान से भी जो मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करने की इस्तात हो जाएगी उनको। जब बहुत सारे लोग मिलेंगे तो वो एक जानवर खरीद कर बारगाह रब्बुल जुल जलाल में कुर्बान कर सकते हैं। तो इस इन्वान से हमारी कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, कुर्बानी के जानवर के इंतखाब में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। कुर्बानी के जानवर फिर जिन पर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो जानवर सेहतमंद हो, उसकी एक ख़ास उम्र मुकर्रर है। बकरे के लिए अलग है, गाय के लिए अलग है, दीगर जानवरों के हिसाब से उनकी एक ख़ास उम्र है। उस उम्र के मुताबिक हो, सेहतमंद हो, बीमार न हो, नाक़िस न हो। वाजिब कुर्बानी के लिए शराइत है, लेकिन जो वाजिब कुर्बानी नहीं कर रहे हैं दुनिया भर के और ममालिक के अंदर जो कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश कर रहे हैं, मुस्तहब है, मुअक्कदा है, ताकीद है इसकी, तो उन लोगों की बेहतर यही है कि वो सेहतमंद जानवर हो, बीमार ना हो, नाक़िस ना हो। लेकिन ये शर्त ज़रूरी नहीं है। अगर सेहतमंद जानवर हो, अगर उसमें कोई नक्स पाया जाता हो, लेकिन उमूमन उसके लिए नक्स करार नहीं दिया जा सकता, तो ये शराइत फ़कत वाजिब कुर्बानी के लिए है। वाजिब कुर्बानी के अलावा दुनिया भर में जो मुस्तहब कुर्बानी अंजाम दे रहे हैं, वो अगर इन शराइत से हटके भी अगर कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश करते हैं तो उनकी कुर्बानी खुदा की बारगाह में। ये शराइत फ़कत वाजिब कुर्बानी करने वालों की। सुभान अल्लाह। क्या कुर्बानी की रकम सदका करने से कुर्बानी साकित हो जाती है? देखिए, कुर्बानी एक खुद अलग एक इबादत है और सदका देना खुद एक अलग इबादत है। लिहाजा सदका देकर वो पैसा जो आपने कुर्बानी के लिए जमा किया था, वो राह खुदा में सदका करें तो वो कुर्बानी तो नहीं हो सकती। ये एक अजीम इबादत आपने अंजाम दिया, सदक़े की कुर्बानी,
یہ صدقہ کیا آپ نے تو یہ ایک عبادت ہے اپنی جگہ میں، لیکن اس سے قربانی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی اور قربانی نہیں ہوگی اس سے، وہ آپ نے صدقہ دیا. لہٰذا قربانی ایک الگ عبادت ہے. تو قربانی کے لیے آپ نے جو پیسہ جمع کیا وہ قربانی ہی کے لیے خدا کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے، اور صدقہ ایک الگ عبادت ہے، وہ آپ الگ سے اس کا انجام دے سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نے جو پیسہ قربانی کے لیے جمع کیا ہے وہ پیسہ میں کسی غریب کو دوں گا تو میری قربانی ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں. سبحان اللہ. قربانی کے گوشت کی تقسیم کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی، مستحب ہے کہ قربانی کا جو طریقہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ ہے اس میں 3 حصے کیے جائیں، اور پہلا حصہ جو ہے وہ خود مومن جو ہے جس نے قربانی کی ہے وہ اپنے لیے رکھے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ جو ہے غریب و غربا کے لیے. یہ مستحب ہے اور بہت اجر و ثواب ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے اس قربانی میں، خاص کر غریب و غربا جو سال بھر وہ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں استطاعت نہ رکھنے کی وجہ، وہ کم از کم اس قربانی میں آپ کی خدا کی بارگاہ میں جو آپ نے قربانی پیش کی ہے آپ ان کو بھی اس میں شریک کریں. اور اس عبادت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ ان غریبوں کو بھی اس دن جو قربانی کا دن ہے اس میں وہ بھی اپنے گھروں میں گوشت پکا سکے، گوشت کھا سکے، ان کو بھی شریک کریں. ایک عظیم عبادت ہے اور یہ مستحب ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ذہن میں ہے، عید قربان کی اصل روح اور فلسفہ کیا ہے؟ بالکل، اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو اس بات کو درک کرنا چاہیے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی، اور عظیم قربانی ہے کہ جہاں پر ایک نبی جو ہے جن کی عمر مبارک 90 پلس ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، جو دعاؤں کے بعد 90 برس کی عمر میں پہنچنے کے بعد خدا بیٹا عطا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ بیٹا خدا کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی عقیدت اور جو ہے خدا سے عشق کی نشانی اور دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنا یہ چہیتا بیٹا کہ اتنی عمر کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرے. اصل میں تو یہ خلوص ہے، وہ ارادہ ہے، وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، وہ اطاعت ہے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آج ہم اور آپ اس کی یاد میں جانور خدا کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں. اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اصل میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پروردگارا میں تیری بارگاہ میں تیری اطاعت میں مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو میں مال پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وقت ایسا آ جائے کہ جہاں مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو پروردگارا میں تیری بارگاہ میں جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا وہ اصل میں ارادہ ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ عشق الہی ہے، وہ اطاعت پروردگار ہے کہ جس وقت انسان خدا کا بندہ اپنے آپ کو ہر وقت ہمتن تیار رکھے کہ جب جس وقت خدا کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے، جان کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہوں. اور اس کے ساتھ انسان کو یہ توجہ بھی کرنی ہوگی کہ یہ جو جانور خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خدا یہ بزرگ و برتر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس کا خون اور اس کا گوشت خدا کی بارگاہ میں تو نہیں پہنچتا، لیکن آپ کا خلوص، آپ کا تقوی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو لہٰذا دنیا بھر میں قربانی پیش کرنے والے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ جو جانور لے کے آ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے وہ شعائر اللہ ہے، اس کا احترام کریں جانور کا، اور اس کے بعد اس کے اندر ریاکاری کا پہلو نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اس قدر جو نا بڑا جانور خریدا، اس دفعہ اتنے پیسے کا فلاں صاحب نے قربانی کی ہے. اگر یہ باتیں اس میں شامل ہو جائیں گی، جہاں پر ریا شامل ہو جائے گی، تو پھر یہ عبادت، یہ قربانی جو ہے اس میں اخلاص نہیں رہے گا، وہ تقویٰ نہیں رہے گا. تو پھر جانور تو آپ نے ذبح کیا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ جو جس خلوص کو خدا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، کیونکہ آپ کا یہ جانور کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، لیکن آپ کا خلوص پہنچتا ہے. تو اس اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اس جانور کی قربانی، ایک تو حضرت یاد ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد بھی ہوگی، ساتھ آپ کا اپنا خلوص، آپ اپنی اطاعت خدا کی بارگاہ میں کس قدر اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ وہ پیش کر رہے ہیں آپ خدا کی بارگاہ میں. یہ عبادت اس قربانی کا فلسفہ ہے کہ فقط آپ جانور قربان نہ کریں بلکہ اپنے انا کو بھی قربان کریں. اندر وجود میں اگر کوئی تکبر جنم لے رہا ہے تو اس تکبر کی قربانی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے اخلاص کو اور اپنے تقویٰ کو پیش کرنا ہے. سبحان اللہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے آج کے انسان کو کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدائے بزرگ برتر قرآن میں بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرو۔ یہ اصل میں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے اپنی عزیز ترین چیز۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں ان کے لیے عزیز ترین چیز ان کے فرزند تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس، لہذا اپنی محبوب ترین چیز کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے پیش کیا۔ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ آپ بھی اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرنا ہے کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں دین کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، جس طرح سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار خدا کی بارگاہ میں لٹایا، اپنی بہنوں کی چادروں کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور پھر اپنی جان کو بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کیا۔ تو اصل اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان جب دین پر وقت آ جائے تو آپ ہر طرح کی قربانی سے ترک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا بھی اس کا حصہ ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا بھی اس کا حصہ ہے؟ نیٹ میں شاید کوئی جی آ گئے، جی بسم اللہ۔ ہمارا سوال چل رہا تھا، کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا اس قربانی کا حصہ ہونا چاہیے؟ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کو بھی قربان کرنا اس کا حصہ ہوتا ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے قبلہ؟ شاید دوبارہ کال میں کوئی مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ یقیناً کوئی نیٹ کا پرابلم آیا، ایشو بن گیا ہے۔ بہرحال بہت پیارا موضوع چل رہا تھا، ٹاپک اچھا ہے۔ دیکھیں جو بھی مناسبت ہو اس کی مناسبت سے گفتگو کرنا یہ بھی فصاحت و بلاغت کی ایک کیفیت ہے، تو اس کو ہم اختیار کریں۔ بہرحال ہم شکر گزار ہیں مولانا سید مظفر حسین رضوی صاحب فرام کراچی کا کہ بہت پیارے انداز میں آج کے موضوع کی مناسبت کو بیان فرمایا۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں اور آباد رہیں۔ بہرحال قربانی تو ہم کر ہی دیتے ہیں، اب دور جو چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں یقیناً اپنے بزرگوں مرحومین کی طرف سے قربانی کر کے دوسروں میں زیادہ بانٹنا چاہیے، اور انسان جو مشکلات حل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے نا، چند عمل ہیں، ایک دعا ہے، ایک استغفار ہے، ایک صدقہ دینا ہے، عبادت کرنا ہے، اور ان میں سے بہترین عمل پانی پلانا ہے اور کھانا کھلانا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت۔ ہاں جی، مولانا سید مظفر حسین رضوی صاحب ہمارے پر لوٹ آئے ہیں۔ جی قبلہ، جناب مولانا سید مظفر حسین رضوی صاحب۔ ہاں بہرحال جیسے ہی ہم تک آتے ہیں قبلہ، ہم ان سے ظاہری بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیٹ کے ایشو نے زوار وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद हर घड़ी हर पलक। जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, आले मोहम्मद का सबका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो गुजरे आप दोस्तान तमाम अहबाबान उलमाए कराम सब ठीक है किबला। करम है, करीम करबला का करम है, मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो हैं। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। शब ईद कुर्बान है और ये भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब होती है, तो करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुकाएं, मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलाद हुसैन, अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या फज़ल अब्बा हुसैन अमदार, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला एक करीम में करबला नवाब करबला, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के हवाले से मौला। और आज की जो शब है, आज की जो रात है, वो यकीनन ईद कुर्बान की रात है, कल सुबह ईद कुर्बान है। मेरे मौला आपकी बारगाह में एक बहुत बड़ा जो अर्ज है यही है कि मेरे मौला एक करीम करबला पूरी दुनिया भर में भी जहाँ जहाँ भी नमाज के इत्तमात हों, जहाँ जहाँ भी मोमिन कराम, जहाँ जहाँ भी मुसलमान नमाज के लिए जमा हो मौला, ये जो शैतान शिर अंगेज पूरी दुनिया में फिरते मौला, इनसे मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। एक करीम करबला नवाब करबला सरदार करबला बहुत ज़्यादा थ्रेड है हमारे पाकिस्तान में। फिर से ये जमायतें सरगर्म हो गई हैं। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले कोटे में धमाका हुआ, फिर कल ईद है। बहुत एक जहनी परेशानी है मेरे मौला। इन तमाम अज़ादारों को, इन तमाम नमाजियान को मौला, जितने भी मौला के अज़ादार हैं, कल खैर वाफियत से ईद कुर्बान गुजरे और मौला कोई नाहिंदगानी वाक़या पेश ना आए। मेरे मौला आज के सब तमाम उन शोहदा के लिए दुआ को हूँ, बिलखुसूस आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया है, उनकी भी ताज़ीयत पेश करते मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, खुदावंद मुतालिब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे आका अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ को हूँ कि आज की शब का वास्ता है मौला, मेरे मरहूम वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाइए मौला, हमारे करबला के सदके में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए मौला। उन तमाम दोस्तान के लिए दुआ को हूँ जो आज सुबह से बार बार शॉप पे, ऑफिस पे बार बार आ रहे थे इल्तिमास से दुआ के लिए मौला। किन किन का नाम लो आप करीम है, करीम इब्ने करीम है, नवाब सरदार है मेरे मौला। आप सबकी दिली और शरई हाजतें सुनते हैं। बिलखुसूस बस अपनी बेटी गुलाम सकीना के लिए दुआ के मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, उसकी झोली आबाद कर दे, जवार वकास अली की झोली आबाद कर दे। बीमार करबला के सदके में इंतजार रजा मेहदी को शफा दे दे मौला, मुझे शुगर के मूजी मत से शफा दे दे मेरे मौला। जरूर इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि आपने जरूर हम गुनाहगारों का नाम जरूर लिस्ट में लिखा होगा और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 40 से इंशाअल्लाह मौला करीब ही आपके कदम बोसी करेंगे, आपकी ज़ियारत नसीब होगी। और इंशाअल्लाह ताला मौला जब तक हयाती है मौला हुसैन आपका दामन न छूटे, ज़िबां पे आपके बाबा का जिक्र न छूटे। मालिक हयाती में हमें बार बार ज़ियारत मुक़द्दसा नसीब फरमाए और मवाती में हमारी शफात करे मेरे मौला, क्योंकि हमें आपके सिवा कोई वसीला नहीं है। और हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जल्द ज़हूर के लिए दुआ गो हैं कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में आका मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर फरमाइए। इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के लिए दुआ गो हूँ कि जितने भी यहाँ सादात गैर सादात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं मौला, इन्हें कोई गम न दे, गम में शबीर के सिवा मौला इनके ऊपर साया कायम दायम हो मौला, इनका साया अपने बच्चों के ऊपर कायम दायम हो। और ये हमारे लिए सफीरान हुसैन है, ये हमारी आवाज़ें आपके कदमों तक पहुंचाते मौला, इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। और दुनिया में तमाम सुनने वाले और देखने वाले दोस्तान की बारगाह में जवार वजीर अली मशहदी एक ही अर्ज हमेशा करता है कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के साथ ताउन करें, भरपूर ताउन करें और आगे इनको शेयर करें और ज़हूर इमाम ज़माना, ताजील इमाम ज़माना और अपनी हाजात की मंजूरी के लिए एक मरतबा मिलकर तमाम दोस्तान बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। और आप तमाम दोस्तान को एडवांस ईद मुबारक हो किबला। सलामत रहें, आपको भी मुबारक हो मौला, आपके लिए
अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोहब्बत की राहें आसान फरमाएँ, सलामत रहें, मुश्किलात हल फरमाएँ, सेहत और तंदुरुस्ती और तमाम मोमिनीन को खुदावंद मुताला अपने अमान में रखे, जहाँ कहीं भी हैं हर शर्र शैतान और आदा के शर से उन्हें महफूज रखे, मौला सलामत रखे तमाम मोमिनीन को। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो है। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। मौला के चाहने वाले यकीनन पुरआशोब ज़माने से गुज़र रहे हैं, मुश्किलात का ज़माना है, कोई कहीं पर चैन और आराम में नहीं है। कहीं पर भी हो मुश्किलात तो हैं ना साथ में, कहीं पर बेरोज़गारी है, रिज़्क है ही नहीं, मुश्किल है। कहीं पर रिज़्क है, उसकी हिफाजत की प्रॉब्लम है, कहीं पर और मुश्किलात है। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल है। अस्सलामु अलैकुम। ज़ैनब अली साहिबा रावलपिंडी से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हर घड़ी हर पलक करबलाए मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। शब ईद है, करबलाए मोहल्ला में करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम और नजराना अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ हासिल हो, हुज्जत खुदा अपना ज़हूर दिखाएँ आपको और अपने नासिरों और मददगारों में शुमार फरमाएँ। आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, बुज़ुर्गों को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब हो, जो मकरूज़ है कर्ज़ गैब से अदा हों, जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद मिल जाए, जो औलाद नरीना से महरूम है उनकी महरूमी दूर हो जाए, जो सफ़र में है मौला उनका सफ़र बेखतर फरमाए, जो तंगदस्त है मौला उन्हें फराखी रिज़्क़ नसीब फरमाए। हुज्जत खुदा अपने मुंतज़रीन में आपको शुमार फरमाए। सलामत रहें, मौला आपको दुनिया और आखिरत अपने कुर्ब व जवार में अता फरमाए। जल्द करबलाए मौला तशरीफ़ लेकर आएँ। सदा सलामत रहें, मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और मोमिनीन को भी तरग़ीब दीजिएगा प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मुश्तरिक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। मोमिनीन, शब ईद है, ज़ाहिरी बात है, हर कोई अपनी अपनी मसरूफ़ियत में लगा हुआ है। कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कहीं आना जाना है, कहीं ख़रीदारी बकरे की हो रही है, तो कहीं कोई अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखने में मसरूफ़ है। फ़ातिमा बतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मौला सलामत रखें। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। बिस्मिल्लाह। ये नहीं होती वैसे मौला की चादर है, मौला की चादर और उसी की चादर है और दुआ करो मौला आपको भी कब्र है। ये मोहर पे कब्र, ये मोहर पे मौला ताकुल है, इता बढ़ गया मौला इता खोल नहीं चाहता मौला ये मोहर पे और वो काम होता है और भाई मौला की चादर है, मौला की चादर है आगे ये वैसे होना वैसे मौली चाहते हैं वैसे और वो है बकरी नहीं होती है बकरी वैसे। मौला मुश्किलात हल फरमाए, आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, आपके घर में जो परेशानियां दूर फरमाएं और मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जल्द करबला आने का शरफ हासिल हो, बुजुर्गों का साया आप पर सलामत रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर करो ना कल
हाँ इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह कल प्रोग्राम होगा। ज़ाहिरन हमें नहीं कहा गया कि कल कोई तातील है, इसलिए कल प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। हम शरीक ओके, ओके। इंशाल्लाह मुंतज़िर रहेंगे आपके। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश ओके। रखे आपको। शब ईद लग रही है। ईद की शब में मगरिबैन की नमाज, हर नमाज के बाद कुछ तकबीरात पढ़ी जाती हैं। उन तकबीरात को आप देख लीजिएगा, उन्हें भी आप साथ में तिलावत कीजिए। सवाब है सुबह की नमाज के बाद, ज़ुहरैन की नमाज के बाद, मगरिबैन की नमाज के बाद इस तरीके से वो तस्बीहात तिलावत की जाती हैं। 2 रकत नमाज कल भी आखिरी होगी, जो कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब गए अल्लाह ताला से बात करने के लिए, तो 30 दिन के लिए गए थे, लेकिन 10 दिन में का इजाफ़ा किया गया। वो 10 दिन यही पहले 10 दिन थे जो कि ज़िलहज के पहली तारीख़ें हैं, यही अय्याम थे। लिहाजा उस मुनासबत से ये 2 रकत नमाज मगरिबैन की नमाज के दरमियान पढ़ी जाती है। तो अगर मोमिनीन फुर्सत करें और पढ़ सकें तो यकीनन इसका सवाब है। बहरहाल मासूमीन अलैहिस्सलाम के बताए हुए अमाल कुछ ज़िंदगी में तब्दीली भी लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ हमें कुरान से शगफ़ पैदा हो जाता है। कोई एक इजाफ़ी अमल करके हमारे लिए दिनों की एक ख़ास कैफियत पैदा जाती है। मसलन रमज़ान अज़ीम की नमाज़ों के बाद हम जो या अली या अज़ीम वाली दुआ पढ़ते हैं, उससे भी हमें एक ख़ास ही एक कैफियत महसूस होती है। इसी तरीके से रोज़े आशूर ख़ुसूसन और बाकी दिनों में भी ज़ियारत आशूरा जो हम तिलावत करते हैं, उससे भी हमें काफ़ी कुछ मानूसियत हासिल होती है। और मौला की बारगाह में जब हम आकर इज़्ने दुखूल पढ़ के ज़ियारत पढ़ते हैं, उससे भी हमें एक ख़ास कैफियत हासिल होती है। जिस तरीके से अरफ़े का दिन गुज़रा, अरफ़े के दिन में हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत करते हैं और साथ साथ हम दुआए अरफ़ा की भी तिलावत करते हैं, जो कि दुआए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो हमें एक मानूसियत सी भी हो जाती है दिनों की। अच्छा, छोटे छोटे से काम हमारी ज़िंदगी में रूटीन में चेंज लाने से हमें थोड़ा सा एक फ़रहत की सी कैफियत हासिल होती है, सुकून सा मिलता है। ज़ाहिर बात है चेंजिंग्स जो होती हैं ये भी ज़िंदगी में अगर आती रहें तो इंसान के लिए अच्छा होता है। बहरहाल दिन गुज़रा, शहादत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम का गम का दिन था, रंज का दिन था, महन का दिन था। आज के दिन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरिया फरमाया। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ मकामात लिखे हुए हैं। बहरहाल मेरे मौला रास्ते में चलते चलते एक मरतबा मेरे मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अब्बास, यहीं पर खैमे लगा दिए जाएं। खैमे लगा दिए गए। करीब आए, कहा मौला कोई ख़ास अम्र हुआ है? मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए। मेरे मौला ने कहने के बजाय दोनों उंगलियां बुलंद की और कहा इनके दरमियान देखो। मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम ने देखा कि कूफा का शहर है, दारुल अम्मारा का बुलंद मीनारा है और एक कैदी मजलूमियत की हालत में हाथ पसे पुश्त बंधे हुए हैं और साथ में काफ़ी सारे सिपाही खड़े हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, अम्मामा खुल के गले में आ गया है। दिक्कत जो की तो मालूम हुआ, कलेजा मुंह को आया। कहा मौला ये तो मुझे लगता है मुस्लिम इब्ने अकील है। फरमाया हाँ ये मुस्लिम इब्ने अकील हैं। कहा तो मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कूफा जाना चाहता हूँ। कहा क्या करोगे कूफा जाकर? कहा मैं मुस्लिम का दिफा करूँगा। मेरे मौला ने फरमाया अब्बास जंग नहीं करनी। देखें हम बचपन से सुनते आए और सबको मालूम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ने मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो शादी की थी ना बीबी उम्मुल बनीन से, तो हदफ यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक नासिर, एक मददगार जो कवी हो, शबीह दामाद रसूल हो और मौला अली अलैहिस्सलाम का बेटा मौला रसूल खुदा के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद कर सके। लेकिन जब भी मदद की बात आती है वहाँ पर रोक दिया जाता है। मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क जारी हुए। मेरे मौला अब्बास ने फरमाया मौला
मौला मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मौला आपने मना फरमाया जंग ना करूँगा, लेकिन मौला जब मुस्लिम का सर कट के ज़मीन पर आएगा ना तो मैं अपना दामन फैला लूँगा, मुस्लिम के सर को ज़मीन में ना गिरने दूँगा। मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मौला ने दोबारा दोनों उंगलियों को बुलंद किया, अंगुश्त शहादत और अंगुश्त दरमियान को मौला ने बुलंद फरमाया और मेरे मौला ने कहा अब देखो, देखते हैं क्या देखते हैं मेरे मौला अब्बास? देखते हैं एक स्याह बुरका पोश खातून है, पसलियों पर हाथ हैं, मेरी बीबी बुलंद आवाज़ से गिरिया कर रही है, आ मेरे मुस्लिम मैं तुझे लेने के लिए आ गई हूँ, ए हुसैन मैं तुझे कहाँ कहाँ पर रोऊँ। गाजी तो ये देख कर मेरे मौला गाजी की आंखों से आंसू आ गए। मेरे मौला हुसैन भी जी भर कर रोए। फरमाया मुस्लिम की यतीमा को लेकर आया जाए। जनाब मुस्लिम की बेटी को लेकर आया गया। मेरे मौला हुसैन ने वो बालियाँ जो ख़रीदी थी ना, बच्ची की कानों में पहनाना जो शुरू की तो बच्ची ठिठक के उठी, कहने लगी मामू जान आप तो इस तरीके से मुझ पर शफ़क़त फरमा रहे हैं जिस तरीके से यतीमों पर शफ़क़त फरमाया करते हैं। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा हाँ आतिका तुम यतीम हो गई हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। आइए हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ मांगते हैं, जिनके ज़हूर की दुआ मांगना हमारे लिए बाइस शरफ़ है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिही व अंसारिही वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।